So hello students, we are going to continue the same exercise, miscellaneous exercise of chapter 2nd, and again I would request please go through complete video, don't try to skip it, otherwise you are going to miss the concept of this exercise. So now I have taken question number 3, as earlier I had said, from question number 3 to question number 8 are of same kind. So in this video we are going to discuss from question number 3 to question number 8. Okay, so here I have taken question number 3, that is what, 2 sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 24/7. आप लोग को मैं पहले ही बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक में आप लोग सारे साइन और कॉस इन्वर्स, जितने भी साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स हैं, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, टेन इन्वर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला पढ़ा हुआ है या फिर टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई का फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो आप लोग सारे साइन और कॉस को किस में चेंज करने की कोशिश में करेंगे, टेन के फॉर्म में। सो हियर यू कैन सी sin inverse 3/5 is there and we want the answer in form of tan inverse. So let sin inverse 3/5 is equal to x. Therefore sin x will be what, 3/5. So cos x will be root over 1 minus sin square x. This will give us root over 1 minus 3/5 whole square. Okay, so here as you know, this will be 9/25. 25 1 is 25. 25 minus 9 will be 16. So 16/25 will give us 4/5. The what, cos x is equal to 4/5. So x is equal to cos inverse 4/5. So as you know, sin x upon cos x will be tan x. So therefore tan x is equal to sin x 3/5 upon 4/5. 5 will get cancelled out, so this will be 3/4. Therefore x is equal to tan inverse 3/4. तो बेटा हमको वैल्यू x किसकी, इन द सेंस इसकी वैल्यू साइन इनवर्स, इट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 is equal to tan inverse 3/4. मतलब हम इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4. नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया tan के फॉर्म में. नाउ 2 tan इनवर्स 3/4. ओके, 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7. आप लोगों को फार्मूला अगर पता है तो अच्छा है. 2 tan इनवर्स x क्या होता है, 2 tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों को डिस्कस में बताया गया था, डिस्कशन में 2 tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी tan इनवर्स 2 इंटू एक्स इज वॉट 3/4 upon 1 minus x square means 9/16. Okay, so this will RHS, this will remains as it is. So here on solving tan inverse, this will be what, 3/2, and directly I am doing 16 1 is 16 minus 9 7/16. As you know, first and fourth together and second and this will be like tan inverse 24/7. And now here I am solving. As you know, this 16 will move upside, so this will be tan inverse 3 into 16 upon 2 into 7 is equal to tan inverse 24/7 as RHS part. You can see 2 8 ja 8 3 ja 24. So this will be tan inverse 24/7 is equal to tan inverse 24/7, which is LHS is equal to RHS. This will be your answer. LHS is equal to RHS. Okay, I hope you understand in this question. Now we can move for the next question. Okay.
Okay, now listen. The question which I am taking, that is question number, suppose I am taking question number 4th only. Question number 4th, that is sine inverse 8 by 17 plus sine inverse 3 by 5 is equal to tan inverse 77 by 36. ठीक, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने बोला कि सारे साइन और कॉस को हम लोग tan में चेंज करेंगे. इसके और भी फार्मूले हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, या फिर साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस. मतलब सारे फार्मूले जितने ट्रिग्नोमेट्री में उसको भी यूज़ किया जा सकता है. लेकिन हम लोगों ने 12th में सिर्फ tan x प्लस tan y इसके फार्मूले पढ़े हैं, इसलिए हम लोग 12th के अकॉर्डिंग अपने सारे साइन और कॉस को किस में चेंज करेंगे, tan में. और मेरा यही सजेशन है कि आप लोग एक तरीके को फॉलो करें जिससे आपको कोई डाउट ना हो. सो इसमें देखते हैं. सबसे पहले साइन इनवर्स 8/17 लेते हैं. सो लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू एक्स. सो साइन x इज इक्वल टू 8/17. सो कॉस x विल बी, थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 64/289. सो कॉस x इज इक्वल टू 289 माइनस 64 225/289. सो दिस विल गिव अस कॉस x इज इक्वल टू 15/17. देयरफॉर डायरेक्टली आई एम राइटिंग tan x is equal to 17 will cancel out. This will give us 8/15. So x is equal to tan inverse 8/15. So एक टर्म का tan तो हमको मिल गया. इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan inverse 8/15. नाउ इसकी टर्म पे सेकेंड साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं. नाउ लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y. थोड़ा सा फिर डायरेक्ट करूँगा, साइन y इज इक्वल टू 3/5. कॉस y थोड़ा और डायरेक्ट करूँगा बेटा मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 9/25. 25 माइनस 9 अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने. दिस विल बी 4/5. सो tan y विल बी 3/4. जस्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, देयर y वॉज tan इनवर्स 3/4. इसकी प्लेस पे ये मिल गया. Therefore it means ये जो क्वेश्चन था वो किस पे चेंज हो गया बेटा, tan इनवर्स 8/15 प्लस इसकी प्लेस पे क्या आया, tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 on taking LHS. अगर LHS को लेकर चलें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. सी द फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ओके, सो फॉर्मूला वॉज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. tan इनवर्स x प्लस y 8/15 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस x इंटू y. Okay, formula here I am not writing, but you have to write tan inverse x plus tan inverse y is what, tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर में 1 minus x plus y. Okay, due to less space I am not writing, and RHS will be continuing. We have taken the LHS, so let us see the LHS part only. So this will give us tan inverse 8/15 plus 3/15. As you know, most probably you all must be knowing LCM will be 15. So 8 plus 9 upon, okay, 5 3 ja 3 3 ja 9. This will be what, any, okay, 3 1 ja 3 5 ja. So this is the 8/25. 25 1 ja 25 minus 8 upon 25. Okay, 25 minus 8 17. 17 upon 25. 17 upon 25. Something we are doing wrong. Let us see. Hope so. Fifth. Let us see only.
सो दिस विल बी बेटा व्हाट, tan इनवर्स, ये रिवर्स हो जाएगा तो 17 इंटू फोर्थ वन इज व्हाट 25 अपॉन 17 इंटू 15. So this 17 will cancel out. Something we have done wrong. Tan y 3/4, okay. Tan inverse 3/4, okay. Oh, this will be 3/4, okay. Sorry for this only. This will be 8/15 into 3/4. So this will 3 5s. No problem. Little mistake only. Let me correct it. Okay. Now see, look at here. This will give us tan inverse. LCM will be 15 and 4, 60. 15 4 ja, 8 4 ja 32 plus 4 15 ja. This will be 45 upon complete. This will be same. LCM will be 20. So 20 minus 8, 12 upon 20. This will give us tan inverse 77 upon 60 and this will be 12 upon 20. अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो tan इनवर्स दिस विल 77 इंटू 20 अपॉन 60 इंटू 12. 0 to 0, 2 3 is 12 3 is 36. So this will give us tan inverse 77 upon 36. This will be your RHS. Okay, I hope so कि आपको समझ में आया. क्या किया, साइन को चेंज किया हमने किस फॉर्म में, tan के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पूरे जो फॉर्मूले हैं वो tan के फॉर्म में हैं और हम लोग एक पैटर्न एक सीक्वेंस लेकर चलेंगे और इसी को यूज़ करेंगे. कहीं कहीं पे फार्मूले यूज़ हुए हैं, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग उसको ज़रूर लिखें, आप लोग उस फार्मूले को लर्न करें और इसके तरह आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई एग्जांपल अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर अपना कमेंट करें, वीडियो को स्किप ना करें और आगे चैप्टर्स के भी वीडियो ज़रूर आप अपलोड किए जाएंगे. आप लोग अपना कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें. एटलीस्ट अगर आपको ज़रूरत नहीं है, किसी ज़रूरी पर्सन तक इसको ज़रूर पहुंचाएं. किसी की भी हेल्प हो उससे हमें सोसाइटी पे हेल्प करना है. ओके, सो थैंक यू.